Okay, so let's continue differentiability. Now, in the last lecture, we have discussed differentiability. We have also seen certain derivatives of some standard functions. Okay, we have also seen derivatives of some standard functions. We have also seen the formula for derivative using limits. That is called as definition of derivative. That also we have seen. Now, next, next is theorem. If a function f is differentiable at a point C, then it is also continuous at that point C. So if you have to check differentiability as well as continuity of a function, and if you are checking differentiability, and if it comes out to be differentiable, then it is obviously continuous. There is no need to check it separately because differentiability implies continuity. ठीक है, डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना ही चाहिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्वियसली. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं. Since f of x is differentiable at C, therefore what does it mean? It means limit x tends to C, f of x minus f of C upon x minus C is equal to f dash of C. So that is according to the definition of the derivative. ठीक है, f dash of C, that is derivative. तो इसके लिए लिमिट का ये फार्मूला हमारा होता है. Now, but for x not equal to C. Now, why x is not equal to C? Because x tends to C. ठीक है, x tends to C का मतलब क्या होता है? x is not equal to C. अगर x is not equal to C है, तो हम f of x minus f of C को लिख सकते हैं. f of x minus f of C can be written as, अब इस f of x minus f of C को हम डिवाइड कर देंगे x minus C से. ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा x minus C से. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया x minus C से, और ये जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी केस में. अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जीरो नहीं होना चाहिए. तो जीरो है ही नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि x tends to C मतलब x not equal to C. Now, now here let us take limit x tends to C on both sides. So therefore limit x tends to C in bracket f of x minus f of C is equal to what? It is equal to limit x tends to C, bracket में हो जाएगा f of x minus f of C upon x minus C multiplied by x minus C. So taking limit x tends to C on both sides. ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिमिट देखते हैं. तो therefore अब इनका लिमिट सेपरेट सेपरेट हो जाएगा. So it will become limit x tends to C f of x minus limit x tends to C f of C is equal to, यहाँ पर भी ये दो फंक्शन से, these are two different functions, दोनों के लिए अलग अलग हम लिमिट कर देते हैं. So it becomes limit x tends to C, न्यूमरेटर में होगा f of x minus f of C upon x minus C into limit x tends to C x minus C. Clear? Now keeping this term as it is, that is limit x tends to C f of x minus, अब लिमिट x tends to C f of C कितना होगा? ऑब्वियसली f of C होगा. C, this is a constant. कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ C. और वेरी कौन हो रहा है? वेरी x हो रहा है. वेरी x हो रहा है. कैसे वेरी हो रहा है? x tends to C. ठीक है, x is getting very very close to C, so x is varying. So this f of C becomes a constant, so it will remain as it is. This is equal to, अब ये जो है, this is nothing but formula for f dash of C. Limit x tends to C, f of x minus f of C upon x minus C. That is nothing but f dash of C into, यहाँ पर हम कर देंगे डायरेक्ट लिमिट. तो पुटिंग x is equal to C over here, x के वाले जब हम C रख देंगे तो C minus C ये हो जाएगा जीरो. ऐसे लिख लीजिए C minus
then this is equal to f dash of c into c minus c मतलब 0 and this is equal to 0. तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है मेरे पास, तो मैं माइनस वाली के टर्म में राइट हैंड साइड में लेकर जाता हूँ. तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू माइनस f ऑफ c उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस f ऑफ c. एंड व्हाट डज इट मींस, देखिए लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों सेम है. इसका मतलब हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. कहां पर, c पर, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ c है, यहाँ पर x टेंड्स टू c है. So this means what? Therefore, f of x is continuous at x is equal to c. तो ये हमने प्रूव कर दिया. Every differentiable function at a particular point is also continuous at that particular point. ले रहे यहाँ तक? Not getting your voice clearly, बताइए क्या हुआ? No, actually I am not getting your voice clearly. Maybe. Just check it on your end. Is there any issue with microphone or headphone, something like that? I am not getting your voice. You can type in the message if that is the case. So, मुझे आपके आवाज है तब थोड़ी आ रही थी, अब भी ठीक है? नहीं समझ में आया कुछ भी. क्या प्रॉब्लम है? नेट तो ठीक ठाक है मेरा. ओके फाइन, दैट्स फाइन. ठीक है, आपको तो मेरी आवाज आ रही है, दैट इज फाइन. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है इसे समझते हुए. ठीक है, तो इफ देयर इज नो डाउट लेट अस मूव ऑन टू करोलरी. अब करोलरी क्या है, देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, every differentiable function is always continuous. That is what, that is differentiability implies continuity. ठीक है, differentiability implies continuity, but continuity does not necessarily imply differentiability. इसका मतलब क्या हुआ, every continuous function need not be a differentiable function. हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, इट इज नॉट अ रूल. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यू नीड टू चेक इट. ठीक है, चेक करना होगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन सी केस है कि जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मॉड एट x इज इक्वल टू 0. अब इसका एक हम एग्जांपल एक्सरसाइज में भी लेंगे कि ये क्यों कंटिन्यूअस है. ये तो मालूम है हमें, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है ये हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. इसके जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे. तो इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेरिवेटिव of composite function. Derivative of composite function. अब इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि जो भी हम करेंगे यही यूज करना है ना. इससे आगे जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑब्वियसली में ये तो कोई नहीं पूछने वाला कि भाई साइनस का डेरिवेटिव का कोई एग्जांपल नहीं होगा. किसी एग्जांपल में साइनस का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा, है ना. तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे ना, ऑब्वियसली दे विल कंटेन कंपोजिट फंक्शंस. अब हमने फंक्शंस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन, क्या होता है. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले
तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन। अब ये तो मैंने 2 ही बार बोला, बट ये तो एक लेंथी है, एक लेंथी प्रोसेस है। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन अगेन। ठीक है, तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अब उस केस में हमें डेरिवेटिव अगर निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, दैट वी हैव टू सी। सो हियर just for your information, the function of a function is a composite function. Simple definition. अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल। सो आई एम राइटिंग डाउन थ्योरेटिकली, if u is a function of v and v is another function of x, then derivative of u with respect to x is du by dx, which is equal to du by dv multiplied by dv by dx. Now this is called as definition of chain rule. ठीक है, थ्योरेटिकली वर्डिंग में हमने लिखा, क्या लिखा है इसको एक बार फिर से समझते हैं। If u is a function of v, so here u is a function of v, ठीक है, and v is another function of x, v is another function of x। अनदर वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया, सेम फंक्शन हो सकता है, मतलब यहाँ पर अगेन यह भी हो सकता है। तो u is the function of v, v is the function of x। Now it means what? It means what? u and x are also connected to composite functions। ठीक है, so this is nothing but this is f o g, u is nothing but f o g, f of g of x। Now in this case we have to find out, obviously if there is a relation between u and x, then we have to find out derivative of u with respect to x। हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? u का डेरिवेटिव अगर हमें x के साथ चाहिए, so that is du by dx। What does it mean? Derivative of u with respect to x। क्लियर? अब लेकिन इस बात को समझिए कि u जिसका किसका फंक्शन है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ v। अब डिफरेंशिएशन में हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। ठीक है, व्हिच फंक्शन इट इज, मतलब अगर u v का फंक्शन है तो u का डेरिवेटिव v के साथ निकलेगा, ना कि x के साथ। u किसका डेरिवेटिव है? v का, तो u का डेरिवेटिव निकलेगा v के साथ, मतलब कहलाएगा du by dv। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो du by dx चाहिए, फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो v का डेरिवेटिव हम x के साथ निकाल सकते हैं, एंड इट बिकम्स dv by dx। अब इनका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो dv एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। dv अगर कट हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? du by dx। क्लियर? सो दैट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैंने दोनों तरीके से, डायग्राम के हिसाब से भी और वर्डिंग में भी आपको बताना। अब okay, now we have to start with the exercise। Now before that, before starting the exercise, let us again understand this composite function in detail। अब ये तो जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा कि ये डेफिनेशन है, इस तरीके से होता है, चलिए ठीक है। एक्चुअल जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम इतना सोचेंगे नहीं कि भाई ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। उसका कंसेप्ट क्या होता है उसको समझिए। देखिए, कंपोजिट फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कंपोजिट फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपोजिट लीनियर फंक्शन, दूसरा होता है कंपोजिट जनरल फंक्शन। ठीक, तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, एक टेबल ही बना लेता हूँ मैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपोजिट लीनियर फंक्शन
लास्ट में मैं लिखता हूं कंपोजिट जनरल फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट लीनियर फंक्शन, कंपोजिट जनरल फंक्शन। अब बेसिकली क्या फर्क है इनमें, इसको समझो। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब वेयर द वेरिएबल इज डायरेक्टली एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन sin x cos x log x tan x x square, standard functions of x directly. Composite linear function means here x will be replaced by x plus b, and composite general function means here x will be replaced by f of x. ठीक, अब यहाँ पे हम इनके डेरिवेटिव लिखते हैं। अब देखिए ddx ऑफ, अगर मैं लिखूं ddx ऑफ x, इधर हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस b, यहाँ पर होगा ddx ऑफ f ऑफ x। आप बता सकते हैं क्या, बताइए मुझे कि ddx ऑफ x क्या होगा? ddx ऑफ x इज, अच्छा ठीक है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है ना मेरे पास, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक इफ यू आर हैविंग एनी मिनट्स। ddx ऑफ x इज 1, करेक्ट है, ठीक है, ddx ऑफ x इज 1। ddx ऑफ ax प्लस b इज द कंपोजिट लीनियर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा a, ax का डेरिवेटिव a प्लस b का डेरिवेटिव 0, तो लिखेंगे नहीं, आंसर हो गया ये। f ऑफ x का डेरिवेटिव हम बोलते हैं f डैश ऑफ x। क्लियर? Now using the same concept we will be finding out derivatives of composite functions. अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं लिखूं ddx ऑफ x रेज़ टू n, तो हमारा फार्मूला है n x रेज़ टू n माइनस 1। ठीक, तो वैसे ही अगर मुझे निकालना होगा ddx ऑफ ax प्लस b ब्रैकेट रेज़ टू n, x नहीं है, x रेज़ टू n नहीं है, अब क्या है x प्लस b ब्रैकेट रेज़ टू n, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला ओनली, फार्मूला हम यही यूज करेंगे, x रेज़ टू n बोलेंगे, फार्मूला हो जाएगा n x रेज़ टू, लेकिन x नहीं है, कौन है x प्लस b रेज़ टू n माइनस 1, लेकिन x नहीं था, कौन था x प्लस b था, इसलिए इनटू हम कर देंगे a, मतलब कि इस ax प्लस b का डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पर हमने लिखा ना du by dv इंटू dv by dx, तो ये जो इंटू होता है ये हमें यहाँ पर कर देना है आगे, तो इंटू a कर दिया। अब इसी तरीके में दूसरा समझते, देखिए ddx ऑफ sin x होता है cos x, मालूम है हमें। अब ddx ऑफ sin ऑफ ax प्लस b क्या होगा, वो हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b, लेकिन इंटू करना होगा हमें a। ठीक, तीसरा एक समझते हैं लॉगरिथमिक के हिसाब से, ddx ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ddx ऑफ log ऑफ x प्लस b क्या होगा, ddx ऑफ log ऑफ x प्लस b, इट इज नथिंग बट जैसे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, तो log ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x प्लस b, लेकिन x नहीं था, कौन था ax प्लस b था, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम a से, मतलब बेसिकली ये स्टेप है क्या, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, मतलब कि a इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, अब ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है a होता है, तो इसलिए हर एक जगह पर ये मल्टीप्लाई होगा आपका कंपोजिट लीनियर फंक्शन। अब यही फार्मूले हम कन्वर्ट करते हैं कंपोजिट जनरल फंक्शन, ddx ऑफ x रेज़ टू n था, यहाँ पर मैं लेता हूँ ddx ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n। Now here f of x may be any function, for example sin x raised to n, log x raised to n, e raised to x raised to n, a raised to x raised to n, ठीक है, तो f of x से कोई भी फंक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक, और अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना तो फार्मूला यही यूज होगा n x raised to n minus 1, ध्यान रहे x नहीं है, x की जगह पर f of x है, इतना बस हमें ध्यान में रखना, फार्मूला तो यही काम करेगा। अब कैसे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n
f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, मतलब f dash of x. क्लियर? सेम फार्मूला अप्लाई हुआ, x की जगह पर f of x है, तो इसलिए हमने इंटू कर दिया डेरिवेटिव ऑफ f of x, मतलब कि f dash of x. अगेन इधर आगे बढ़ते हैं, sin x का डेरिवेटिव अगर है तो ddx ऑफ sin of f of x क्या होगा? Obviously it is cos of f of x into f dash of x. ddx of log of f of x क्या होगा? It is 1 upon f of x into f dash of x. ठीक है, तो क्लियर है कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन का. इसी कंसेप्ट के ऊपर हम अगला एक्सरसाइज सॉल्व करने जाने वाले हैं, बट ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर? मैसेज में टाइप कर दीजिए, मैसेज में टाइप कर दीजिए एक बार. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, so let's continue with the exercise. I think there is some issue from my side because वीडियो भी पॉज हो रहा था ना, वीडियो भी पॉज हो रहा था. चलिए, so let's continue with exercise 5.2. ठीक, question is differentiate with respect to x. So obviously ध्यान में रहे, in whole calculus part y is a function of x. So if it is not mentioned, we can let the function to be y. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे let y is equal to sin of x square plus 5. And what we have to do? We have to differentiate with respect to x. So हम यहाँ पर लिख देंगे differentiate with respect to x. y का डेरिवेटिव with respect to x हो जाएगा dy by dx, which is equal to. ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस. ये प्रोसेस हमने सेट कर दिया. अब हमें राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालना है. अब देखिए साइन ऑफ समथिंग, सो इट इज साइन ऑफ f of x. दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन ऑफ f of x. ये f of x से आता है. अब साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ f of x इनटू f dash of x, मतलब कि ddx ऑफ f of x. तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ चेंज. साइन f of x का डेरिवेटिव cos f of x इनटू f dash of x. f dash of x मतलब ddx ऑफ f of x. आगे हम ये नहीं लिखने वाले हैं, तो इसको अच्छे से यहीं पर समझ लीजिए ताकि आगे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकें. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इनटू इस ब्रैकेट में x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, आंसर होता है मेरा 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. नाउ सिंस दिस इज द स्टार्टिंग, वी आर सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप. आगे हमें यही चीज, इसका आंसर सीधा हमें ये लिखना है. ठीक, थर्ड वन, साइन ऑफ ax प्लस b. अभी तो हमने पहले ही ले लिया साइन ऑफ ax प्लस b. ठीक है ना, हमने कंपोजिट जनरल फंक्शन में यही वाला एग्जांपल लिया था. तो लेट कर देंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b. इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy by dx, व्हिच इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos ax प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b मतलब a. तो आंसर हो जाएगा a cos ax प्लस b. एक स्टेप मैंने ये वाला कम कर दिया. फिफ्थ वन, sin ax प्लस b cos cx प्लस b.
Now observe carefully. This is sin upon cos equal to tan. नहीं होगा, क्यों? थीटा डिफरेंट है. दिस इज ax plus b, दिस इज cx plus d. तो sin upon cos का tan नहीं होने वाला है. वेरी सिंपल, बट एक बता दिया, ऑब्जर्वेशन केयरफुल होना चाहिए. अब यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन को y. सो लेट y इज इक्वल टू इससे हमें करना है ठीक, एंड देन we'll get dy by dx. Okay, so it is dy by dx. अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बताइए आप. मतलब कौन सा रूल, कौन सा फार्मूला, क्या यूज करना होगा? सबसे पहले u अपॉन v कोशेंट रूल. ठीक है, u अपॉन v कोशेंट रूल. अब जिस तरीके से मैंने बताया था, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. अभी ध्यान में कि कौन सा u कौन सा v कुछ नहीं, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तुरंत दिखता है आपको, है ना. आवर आइज आर वेरी वेरी फैमिलियर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बहुत क्लियरली. तो उस तरीके से अगर हम देखें तो फार्मूला हमारा है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर whole divided by denominator square. ठीक है, so that is the formula. एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला देखिए, जितनी बार भी मैं करूंगा फार्मूला यही बोलने वाला. एंड देन आई विल पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें मालूम है कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब इसे सिंपलीफाई करना है. सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ cx प्लस d इनटू sin ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b इनटू a, फिर माइनस sin ऑफ ax प्लस b इनटू cos ऑफ cx प्लस d का डेरिवेटिव होगा माइनस sin ऑफ cx प्लस d into c whole divided by cos का स्क्वायर cx plus d. ठीक, अब अगर हमें थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा a cos ax plus b into cos cx plus d माइनस माइनस प्लस कांस्टेंट c into sin x plus b sin cx plus d whole divided by cos square cx plus d. ठीक, so this is the simplified form. इससे आगे और अगर सिंपलीफाई हमें करना है, एमसीक्यू में अगर होगा मान लीजिए तो आंसर वैलिड है. एमसीक्यू में होगा तो आप न्यूमरेटर के दो पार्ट से डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड होगा. अब दोनों को मान लीजिएगा डिवाइड होगा, पहले को जब डिवाइड होगा तो cos और cos कट जाएगा, तो एक डिनोमिनेटर में cos बच जाएगा, बट देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. दोनों तरफ आपके फ्रैक्शंस हो जाएंगे. ठीक, सो लेट इट बी एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 7. अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन के अंदर है, कॉट है अंडर रूट में, ना कि एक्स स्क्वायर कॉट के अंदर है. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट यू विल राइट डाउन एंड विल गेट dy by dx. अब ध्यान से समझिएगा कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन किस तरीके से है.
ठीक है, सबसे पहले तो 2 रिमेन्स एज इट इज, फिर इस रूट का डेरिवेटिव रूट एक्स, या फिर आप बोलेंगे रूट एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पर कौन है, कॉट एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए। तो एज इट इज अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स ऑब्वियसली। अब एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 यहाँ पर कट हो गया, इट इज 1 अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ स्क्वायर इनटू, अब कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव किसका हुआ, कॉट का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स नहीं था, कौन था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो हमें इनटू करना होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब कि 2x, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। So that is your answer. So is it clear up to this? So I am restarting the meeting.